Hello students, welcome to Sagar College of Science. So last class रे आमे discussion करूथलु what is incomplete dominance. Okay, how it deviates from the Mendel's law of dominance. Incomplete dominance रे आमे कौन सिखिलु कि in heterozygote condition the dominant allele fails to express completely and that kind of dominance is called as incomplete dominance. सो जो गोटे केस अच्छी हेट्रोजाइगोट कंडीशन अच्छी से कौन हो जो डोमिनेंट फैक्टरटा अच्छी से कंप्लीटली एक्सप्रेस करि पारुनी ताकू आमे कहबा इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ओके, तो तार डिफरेंट एग्जांपल्स भी आमे डिस्कस करथिलु. फर्स्ट केस आमे नेथिलु कोन स्नैपड्रैगन फ्लावर, द ब्यूटीफुल फ्लावर यू हैव सीन. जेते बेला आमे तार पेटलटा को प्रेस करूथलु हाउ इट ओपन्स द माउथ एंड इट रिजेंबल्स लाइक व्हाट माउथ ऑफ ए डॉग, माउथ ऑफ ए dragon, like that. Second example I mean now in incomplete dominance, that is what it is your Mirabilis jalapa plant. Okay, so let's start with incomplete dominance. Or next example, incomplete dominance, and the example is your Mirabilis jalapa, Mirabilis jalapa. Okay, so Mirabilis jalapa means what? The naam the kon pai he. So in Latin language Mirabilis means what? Wonderful, and jalapa is the state capital of Veracruz in Mexico. So you can say it is a wonderful flower, or it is also called as Mexican Peru. Okay, so this is what the wonderful and state capital of Veracruz. It is Mirabilis jalapa. The common name is called as what? 4 o'clock plant. Why this is called as 4 o'clock? So ये जो flower टा अच्छी से कौन करिवो इवनिंग रे 4टा बेले फूलटा फुटिवो राति जाक रहिवो भोर भोर 6टा बेलेटा मोळी जाए. तो सेति पई यार नाटा हला कोन 4 o'clock plant. The purpose is it blossoms at 4 p.m. in the afternoon. That is why. Okay, so this is called as 4 o'clock plant. The beautiful flowers, and in the 4 o'clock plant what is happening? Two types of flowers present. So kichi plants ochanti 4 o'clock plant ba Mirabilis jalapa koi paribo that are having what? Red flowers, and some flowers are white flowers. So it ame kon kariba in the mono hybrid cross. So mono hybrid cross re kon हुए गोटे character को आमे study करिबा by crossing two parents. So दुईटा parents आमे choose करिबा आउ ता भितर कोन करिबा will consider only one character in our cross. For example, एठी गुटा मु parent plant नउची. This is my male parent and this is my female parent, and this is what? Red. Okay, this is white. So red by मु कोन लिखुची? It is capital C. For white it is recessive. Now this is my parent. तो gamete production हबो capital C ये recessive parents रे कोन होची small c and small c gamete. In F1 generation what happens? Gametes fuse, factor combines, zygote formed, and genotypes are created. So it is कोन हबो when we combine the different alleles. So beta कोन हैला? This is my heterozygote condition. This is my F1 generation of springs. तो ये जो plant हेले in the F1 generations से plant रो जो flower हबो तार color कोन है जीवो? Think what will be the color? It हबा कथा कोन? Actually according to Mendel's law of dominance it must be red, but here what happens? It becomes pink color flowers. So it is जो F1 of springs आसुची मोर तार जो flower color आसीबो that is nothing but your pink color. So all the F1 of springs are pink. Now try to analyze. Hila kone red color. This is my white color. Cross kolu the plant ko. Tara jo of springs asuchanti. Tara character ta kone pink. Not red, not white. The intermediate color that is called as what? Pink color. Okay. So pink is what? It is the intermediate color in between the red and the white. That means we can conclude here in heterozygote condition in presence of a recessive factor
the dominant factor fails to express completely, and such type of dominance is called as what? Incomplete dominance. Okay, so this is what F1 of springs. F1 of springs ra kono heterozygote condition, and these are my pink flowers. Okay, ताकू जदि सेल्फिंग करा जाए, आफ्टर सेल्फिंग एबेट जो प्लांट्स आसीबो दीज आर कॉल्ड एज माय अप टू जनरेशन प्लांट्स. सो एठी कोन आसीबो रिजल्ट्स हमें देखिबा. सो नाउ मेक ए चेकर बोर्ड. दिस इज माय चेकर बोर्ड. ओके, चेकर बोर्ड रो कांसेप्ट मने थिबो समस्तंकर. बॉक्स बाहर गैमेट्स रहइबो. दिस इज माय मेल गैमेट्स एंड दीज आर माय फीमेल गैमेट्स. सो ये जो क्रॉस करिबा हमें F1 ऑफ स्प्रिंग्स रो सेल्फिंग टाकू एटू कोन कोन गैमेट बाहरिबो देखो. दिस इज डोमिनेंट फैक्टर, रिसेसिव फैक्टर. फीमेल गैमेट्री वेसला डोमिनेंट फैक्टर एज वेल एज रिसेसिव फैक्टर. तो दीज आर माय मेल गैमेट्स, दीज आर माय फीमेल गैमेट्स. ताकू एबे हमें फ्यूजन करिबा. बॉक्स भितरे कोन रुए? दिस इज द साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. सेठी कोन हबो? गैमेट फ्यूजन हुए, एलिलिक कॉम्बिनेशंस हुए, तो सेठी जीनोटाइप क्रिएट हुए. तो आम या कंबाइन करवा मेल गैमेट फीमेल गैमेट. सो यहाँ गोटे कॉम्बिनेशन आसी पार. अगेन सेकंड कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज माय थर्ड कॉम्बिनेशन, दिस इज माय फोर्थ कॉम्बिनेशन. सो जीनोटाइप इज रेडी राइट नाउ. नाउ ट्राई टू एनालाइज द फेनोटाइप. सो ये आम देखिपारे जीनोटाइपटा को लक्ष्य करी तुम फेनोटाइपटा जापर. कौन फेनोटाइप से बाहर देख लो. सो यहाँ दिस इज माय F2 जीनोटाइपिक रेशियो. कौन बाहर देखा? F2 जीनोटाइपिक रेशियो रे कौन कौन आसीबो? होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, एंड दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव. ओके, होमोजाइगस डोमिनेंट 1, हेटेरोजाइगस इज 2, एंड होमोजाइगस रिसेसिव इज also 1. Okay, homozygous dominant 1, homozygous recessive 1, heterozygote is 2. Okay, and what is about my F2 phenotypic ratio? phenotype माने कौन बोले? phenotype रो अर्थ वाला कौन? एक्सटर्नल विजिबल अपीयरेंस. केमती से फ्लावर रा कलर देखा जाउची, रेड देखा जाउची, व्हाइट देखा जाउची, बा पिंक देखा जाउची. द एक्सटर्नल विजिबल अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड एज योर phenotype. सो ये आम देखिपर कौन? रेड फ्लावर केतटा आसूची, देन योर पिंक फ्लावर केतटा आसूची, देन द लास्ट वन इज द व्हाइट फ्लावर. सो रेड इज ओनली 1, पिंक इट इज 2, व्हाइट इट इज 1. देखिपार दिस इज रेड, पिंक, पिंक एंड व्हाइट. ओके, दिस इज सपोज रेड, and this is my pink flower, this is also my pink flower, this is my white flower. So एठी भी आम देखुचे कि जीनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो इन द अप टू जनरेशन मैच विथ ईच अदर. बुझिला, एंड दैट इज नथिंग बट 1:2:1. नेक्स्ट एग्जांपल आम नबा. नेक्स्ट एग्जांपल आम देखिबा, दैट इज द अंडुलेशियन फाउल. तो ये आम गोटे एनिमल उपर स्टडी करिबा, एंड दिस इज द फाउल. ओके, थर्ड एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट इज अंडुलेशियन फाउल. अंडुलेशियन फाउल. ओके, फाउल माने कौन? कुकुड़ा. ओके, सो अंडुलेशियन कहबार उद्देश्य कौन? अंडुलेशिया इट इज ए प्लेस, एटा गोटे जगह, स्पेन रो गोटे जगह, एंड इट इज द ऑटोनोमस कम्युनिटी. तो सेठी जो स्पेशल टाइप रो कुकुड़ाटा अच्छी ताको आम कहबा कौन? अंडुलेशियन फाउल्स. डिफरेंट कलर्स ऑफ अंडुलेशियन फाउल्स आर देयर. किछि किछि कुकुड़ा सेठी अछंती जो मानकर कलर ब्लैक अछि, आउ किछि किछि कुकुड़ा अछंती जो मानकर कलर व्हाइट अछि, एंड सम फाउल्स आर देयर हैविंग द ब्लू कलर्स. तो ये आम कौन करवा? क्रॉस करवा. ओके, बाय टेकिंग द अंडुलेशियन फाउल्स एज पेरेंट्स. सो कंसेप्ट ये कौन अच्छी? सपोज द अंडुलेशियन फाउल, दिस इज द मेल फाउल, एंड दिस इज माय
female fowls parents. So male parent टाक मन कर मु ब्लैक कलर नेली ये कुकुड़ाटा कौन हो व्हाइट. ओके सो जीनोटाइप व्हाइट इज रिसेसिव. गैमेट प्रोडक्शन अकर्स. गैमेट्स को पिले सब बेले सर्कल्स भितर नोट करिवो. ओके होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन दीज आर योर गैमेट्स. एबे कौन आसीबो F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स. सेटा केमती आसीबो मैटिंग होउची क्रॉसिंग होउची ब्रीड तैयारी होउची. ओके मेल गैमेट फीमेल गैमेट रो फ्यूजन होउची. देखिबा कॉम्बिनेशंस कौन आसुची. दीज आर द कॉम्बिनेशंस. ओके सो दिस इज द कॉम्बिनेशंस. नाउ इट कौन कलर हबो. व्हाट विल बी द कलर. एठी हमें कौन देइतिलु पेरेंट इज ब्लैक मेल एंड माय फीमेल पेरेंट इज व्हाइट. से दीटा कुकुड़ा भितर जब मैटिंग हो. रिमेंबर इन कैस ऑफ एनिमल्स द ब्रीडिंग इज कॉल्ड एज मैटिंग. ओके सो ये आम कौन कले मैटिंग कले इन बिटवीन ब्लैक मेल एंड व्हाइट फीमेल्स. तो गैमेट प्रोडक्शन गैमेट फ्यूजन दीज आर द जीनोटाइप्स ऑफ द F1 ऑफ स्प्रिंग्स. यार कलर कौन आवा कथा अकॉर्डिंग टू मेंडल ऑफ डोमिनेंस. In the F1 generation only the dominant characters will express. But surprisingly it कौन है जेती कि चिक बाहर ले. ओके तो से सब कौन है तांकर कलर सब ब्लू कलर है गला. In the F1 generation the color becomes what blue color. These are blue color progeny. Okay so blue color टा कौन है ना तो black है ना white है. Intermediate color in between what black and white. That is nothing but your blue color. Okay तो एबे हम कौन करिवा for the F2 generation. So this is my F1 of spring. F1 blue color fowl. से कुकुड़ा माने कौन होला ब्लू कलर. एठी हमें सेल्फिंग यूज करि परिबानी मैटिंग ऑफ द टू फाउल्स विथ ब्लू कलर. ओके एनिमल्स रे सेल्फिंग है परिबानी बिकॉज़ द एनिमल इज यूनिसेक्सुअल. So ये हम कौन करि परिबा मैटिंग बिटवीन टू F1 ऑफ स्प्रिंग्स विथ ब्लू कलर. तो ये हम क्रॉस करिबा दिस इज वन ऑफ माय F1 ऑफ स्प्रिंग क्रॉस्ड विथ द अदर F1 ऑफ स्प्रिंग विथ ब्लू कलर. क्रॉस करिबा हम. So all these members belongs to what F1 generations. So now gamete production. Gamete production is over. Then in F2 what will happen. So let me draw Punnett square for you. And it is my male gamete. Here I am write my female gametes. तो male gamete रे कौन थी वो capital B small b. Female gamete भी equal capital as well as small. So gamete fusion habo allelic combination of a factor reunite habo. So what will be the genotype here. Capital B then capital B small b caps B small b and homozygous. Okay so this is genotype is ready. तो याको बेस करिक आम देखी पारिबा व्हाट विल बी द फेनोटाइप. फर्स्ट क्लास आम डिस्कशन करूतलु जीनोटाइप इज द ब्लूप्रिंट. जीनोटाइप विल डिसाइड द फेनोटाइप. मास्टर प्लान टा कोन अछि व्हाट इज द ब्लूप्रिंट दैट विल गवर्न द फेनोटाइप. ओके सो व्हाट विल बी द फेनोटाइपिक रेशियो हियर in the F2 generation progeny. In F2 generation first of all phenotypic ratio केते आसला कौन कौन आसीबो कॉम्बिनेशन कहलो एटा कोन हबो. दिस इज योर ब्लैक दिस इज व्हाइट एंड two springs of F2 generation are blue. So phenotypic ratio black is to blue is to white. Ratio केते आसीबो black 1 is to blue 2
and white one. What will be the genotypic ratio? Okay, F2 genotypic ratio टा कौन हम देखिबा जीनोटाइप माने कौन आलिली कॉम्बिनेशन सो एटा गोटे कॉम्बिनेशन अछि हेटेरोजाइगोट गोटे कॉम्बिनेशन हबो एंड होमोजाइगस रिसेसिव आ गोटे कॉम्बिनेशन हबो होमोजाइगस डोमिनेंट 1 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट दैट इज 2 एंड होमोजाइगस रिसेसिव इट इज 1 ओके तो phenotypic ratio as well as genotypic ratio will equal in the incomplete dominance in all cases से snapdragon हो से mirabilis चलापा प्लांट हो but may be the undulation pulse हो प्रत्येक केस रे आमे देखुछु phenotypic ratio genotypic ratio in the F2 generation becomes equal okay तो ये गोटे जिनस आमे नोट करि परिबा कि यार कांसेप्ट कोन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट ये पछरे कारण कोन थाई पारे व्हाई द F1 ऑफ स्प्रिंग्स आर ब्लू ओके कि जो एनिमल रो कलर अछि तारो फेदर कलर अंडुलेशन पाउल्स रो फेदर रो जो कलर अछि एंड कलर इज डिसाइडेड बाय द पिगमेंट okay which pigment will decide your skin color feather color is decided by the melanin pigment and based on the amount of melanin synthesis the color becomes black white or blue suppose in the homozygous condition homozygous dominant condition ei case ta ko ame mane karo naba so iti kon hochi sufficient melanins are synthesized so concentration of the melanin that will decide the color of the fur okay whether color ta black habo ki blue habo ki white habo that is decided by amount of the melanin so first case re kon habo in the homozygous condition amount of melanin is high the color kon halo black second case in the heterozygous condition melanin concentration is low sethi pai tar color ta kon hela intermediate in between the black and white that is blue last cases re kon asu in the homozygous recessive condition color becomes white no melanin is synthesized is it clear to everybody okay तो आमे कौन कंप्लीट कलु इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे कौन होतला इन बिटवीन टू पेरेंटल कैरेक्टर मझरे गोटे कौन आसला F1 जनरेशंस रे इंटरमीडिएट कैरेक्टर सेटू आमे कंक्लूड कलु कि जो डोमिनेंट फैक्टर टा अछि that is not completely expressed in presence of the recessive factor and this phenomenon is called as incomplete dominance so next out a concept ko ame jiba that is called as your codominance so ebe dekhiba ame what is codominance okay codominance mane kono co means equal co means with codominance माने in the heterozygous conditions मने करो दुईटा जाको आलील इक्वल लाहंती फैक्टर इक्वल लाहंती ताले से कंडीशन टा को हम कोन कहउतलु हेटेरोजाइगोट कंडीशंस रे तीनटा जिंस ही पारे सो गोटा फैक्टर जदि एक्सप्रेस कला आ गोटे मास के गला दैट इज कंप्लीट डोमिनेंस सेकंड केस रे हम देखिलु कि जो रिसेसिव फैक्टर प्रेजेंस रे डोमिनेंट फैक्टर टा कंप्लीटली एक्सप्रेस ही पारु नाही ताको हम कोन कहलु इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस रे कोन हबो दुईटा जाक फैक्टर इक्वली एक्सप्रेस करिवे बोथ फैक्टर्स इन द हेटेरोजाइगोट they will express completely equally they will express and that phenomenon is called as codominance so note kariba ame in heterozygote condition both factors express themselves equally ठीक अछि सो कोडोमिनेंस रे कांसेप्ट होची या कि जदि गुटे हेटेरोजाइगोट कंडीशन अछि जोटी दुईटा जाक फैक्टर इक्वल नाहंती ताको हमें हेटेरोजाइगोट बोली कहि थाउ सा कंडीशंस रे कोन होची कि बोथ फैक्टर्स विल एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर तांकर जो निजर कैरेक्टर अछि बोथ फैक्टर द डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव दे विल एक्सप्रेस कंप्लीटली and such phenomenon such studies are called as what codominance so the beautiful examples of the codominance is what
AB blood group in human, then sickle cell anemia, sickle cell anemia. So these are two beautiful examples. Human blood group टाको आमे देखिबा, ओके केमती सेठी कोडोमिनेंस होउची कोन कथा होउची देखिबा. So first example, AB blood group. And students, you all know blood group के discover କରିଥିଲେ कार्ल लैंडस्टाइनर. So जदि आमे ब्लड सैंपल नबा, आई विल कलेक्ट 4 ब्लड सैंपल. मो निजर गोटे पर्सनल ब्लड सैंपल ले, बाकी तुम पाखर गोटे गोटे सैंपल कलेक्ट मु कली. तो ताको मु टेस्ट ट्यूब भितर रखली. टेस्ट ट्यूब भितर देखिले कोन जीवो, ऑल द ब्लड्स विल लुक सिमिलर. चारटा जाको टेस्ट ट्यूब रे थिबा डिफरेंट डिफरेंट ब्लड एका भलिया देखा जीवो. बट सी जो चारटा जाको ब्लड दैट आर नॉट इक्वल. ताको हम टेस्ट कले जानि परिबा, गोटे टेस्ट ट्यूब ने आउट टेस्ट ट्यूब रे तुम पकाई दियो, कोन जो ब्लड विल क्लॉट. दैट मीन्स इफ ऑल ब्लड लुक सिमिलर, स्टिल देन एवरी ब्लड इज यूनिक. सो केते टाइप रो ब्लड अछि, ब्लड ग्रुपिंग केमती हेछि ताको देखिबा. से कांसेप्ट कोन होछि कि जो ब्लड ग्रुप दैट इज डिसाइडेड बाय द एंटीजन प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी. सो AB blood group, the example of codominance. So blood vessels भितर जते ब्लड सर्कुलेशन होउची ता भितर डिफरेंट टाइप्स रो ब्लड सेल्स थाए, जेमति कि तमरो रेड ब्लड सेल्स बा आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स बा श्वेत रक्त कणिका और डब्ल्यूबीसी, देन द प्लेटलेट्स. ओके, सो आरबीसी रो शेप केमति थाए. सो दिस इज माय आरबीसी. RBC is the biconcave shape. Okay, this is my biconcave RBC. So RBC रो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर किछि एंटीजन बाहरी थाए. ओके, so this is my RBC and the plasma membrane containing various antigens. That antigens will decide your blood group. The surface antigen present over RBC surface, hence it is called as surface antigen. So RBC रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर जो एंटीजन थिबो, केमिकल नेचर इज ओलिगोसैकेराइड्स. तो से कोन करिवो, दैट विल डिसाइड योर ब्लड ग्रुप. केते टाइप रो एंटीजन अछि, से एंटीजन को सिंथेसिस करिवो किए. सो एंटीजन को बनेया पे गोटे जीन दरकार, एंड दैट जीन इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम. ओके, सो क्रोमोसोम हमर केतेटा थिबो, 23 पेयर्स थिबो. ता भितर गोटे अछि 9th pair of chromosome. Okay, so this gene, so the gene that is responsible for synthesizing the surface antigen, so this is my surface antigen. Okay, तो आपको सिंथेसिस करिया पई जो जीन टा दरकार, से जीन टा कोडी अछि. This particular gene is located on this gene is present on my chromosome number 9. Chromosome number 9. Okay, so chromosome number 9 टा गोटे कोन somatic chromosome, it is the autosome. This is chromosome number 9, that is your autosome. बात आको तमे कहि परिबो somatic chromosome. तो हमर जो क्रोमोसोम अछि 23 पेयर्स, ता भीतर कोन होछि कहले पिले 22 पेयर्स हला ऑटोसोम बा सोमाटिक क्रोमोसोम. ता माने दे विल कंट्रोल योर बॉडी कैरेक्टर्स, सोमाटिक कैरेक्टर्स. लास्ट पेयर जोटा रहिछि और 23rd पेयर टा, दैट इज कॉल्ड एज योर सेक्स क्रोमोसोम्स. इट विल डिसाइड योर सेक्स. यू विल बिकम ए मेल और यू विल बिकम ए फीमेल. दैट इज डिसाइडेड बाय योर सेक्स क्रोमोसोम और द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम. सो जदि एटा 9th पेयर होउछि ताले एटा कोन हबो, सोमाटिक क्रोमोसोम. बा ऑटोसोम साइड जीन टा अछि, that gene is responsible for what, synthesizing the surface antigen. अब से जीन नो नाम डाला I gene. Okay, the gene that is responsible for surface antigen, this gene is called as your I gene. फिर I stands for what, isohemagglutinin. Isohemagglutinin. Okay, this is my I gene. That gene, that I gene is present in chromosome number 9 and it is responsible for the surface antigen. Is it clear? But it am out jinso note kari pariba
कि जो जीन गुड़ाक अच्छा आमर से जीन कौन होता है कहले पे जीन डिफरेंट फॉर्म्स थाए ओके एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन्स आर कॉल्ड एज व्हाट एलील्स सो प्रत्येक जीन रो दुईटा एलील थाए ओके एटलिस्ट टू एलील्स प्रेजेंट इन ईच जीन सो ये आम लिखा ईच जीन हैज how many alleles? Two alleles. That means what? Two alternate forms. Okay. But kichi gene achandi. Some genes are there. They have more than two alternate forms or more than two alleles. यदि दुई अधिक alleles रहिला गोटे जीन रो ताकू आमे कहबा कण multiple alleles. And multiple means many. Okay. मने कर गोटे जीन अछि it is having more than two alleles दुई रु अधिका जदि गोटे जीन alleles रहुची से कॉन्सेप्ट को हमें कहबा मल्टीपल alleles ओके द जीन इज हैविंग मल्टीपल alleles मल्टीपल माने कोन मेनी मोर देन टू alleles ऑफ ए जीन इज मल्टीपल एठी जो आई जीन टा अछि तारो मल्टीपल alleles अछि मींस मोर देन टू हाउ मेनी alleles प्रेजेंट I gene has three different forms, three alternate forms, three different alleles. कौन से alleles रही देखा दिस इज माई ब्लड ग्रुप जीन I ओके ये जो I जीन टा अच्छी कौटी थी बड़ा क्रोमोसोम नंबर 9 ने रहिबो तार कौन फॉर्म्स अच्छे हमें नोट करवा तीनटा फॉर्म्स अच्छी सपोज दिस इज माई IA and one more form IB and the last form is small I okay three different versions are there ये गोटा versions ये गोटे अल्टरनेट फॉर्म एंड दिस इज द रिसेसिव सो ये कौन हो IA एंड IB दीज आर इक्वाली डोमिनेंट ओके दीज आर इक्वाली डोमिनेंट ओवर ईच अदर एंड IA एंड IB आर डोमिनेंट ओवर I ता माने ये कौन हम I इज द रिसेसिव स्मॉल I द रिसेसिव I इज द रिसेसिव फैक्टर ओवर द डोमिनेंट IA एंड IB बुझेला IA and IB are equally dominant and small I is recessive. Okay, so these are the different forms. तो ये सब alleles कोड थिबो in the chromosome. Nowadays हमें जान सालुन कि the chromosome containing genes in that particular point where the gene is present in the chromosome is called as what? That is called as the locus. Okay, तो chromosome रे रहबो को chromosome रे रहबो 9th chromosome रे रहबो 9th रे कोन autism मने करो this is my 9th pair of chromosome so 9th रे केतला थिबो pair थिबो why we are diploid organisms we are having two sets of chromosomes one paternal set one maternal set so good set is coming from my father and the other set is coming from my mother it is paternal and this is my maternal sets so जो 23 pairs अछि प्रत्येक pair को यदि हम नोट करबा each pair containing two chromosomes one is contributed by father and other कोड आस्थिबो from your mother suppose this is my 9th pair it is homologous pair okay this is my 9th pair so it concept टा कोन थिबो suppose this is the 9th coming from father 9th coming from father this is my 9th coming from mother ठीक अछि so it is my paternal it is my maternal chromosomes तो या भीतर गोटे DNA थिबो आ भीतर गोटे DNA थिबो DNA रो किछि सेगमेंट गोटे जीन बनै थाए the specific DNA segment that controls a suitable character a particular character that is called as gene suppose एठी गोटे लुकस अछि तार homologous लुकस सेटा हबो माने करो एठी मोर गोटे लुकस अछि 9th मानेटा कोन दिबो ब्लड ग्रुप जीन that is I gene so ये मन कर मोर कौन हो कहल I जीन अच्छी IA अच्छी ये कौन IA अच्छी ताले यार जीनोटाइप कॉम्बिनेशन कौन हो IA as well as IA and the blood group of this person becomes A my blood group is A blood group that means my paternal chromosome containing IA alleles and my maternal chromosome also containing IA allele. So it is a homozygote combinations and that will synthesize the A antigen on the RBC surface
and my blood group becomes what? A blood group. So it हमें केतेटा possible combination हेई पारिबा allele रो जीनोटाइप केतेटा हेई पारिबो ओके से जिनसटा को हम टिके नोट करिबा सो इठी हमें देखिबा कोन कोन नोट हेई पारे सो हम पाखरे alleles केतेटा रहइला तीनटा रहइला मल्टीपल alleles बट जते बेला हम गोटे जीनोटाइप बनाइबा so when I will make my genotype. Genotype is what? It is the combination of two alleles. Okay, the combination of two alleles present at similar locus of a homologous pair of chromosome. So ये जो allele टा अच्छी आउ ये जो allele टा अच्छी आपको जो दी मु combine करी देवी ताले टा कौन है जो genotype है जी ओके मो पाखरे अच्छी कतरा allele तीनटा forms अच्छी तीनटा version अच्छी ताले मने करे ये गोटे locus कथा हमें note करिबा सो ये लुकोस रे कौन हम आई ए रही पारिबो और आई बी भी रही पारिबो और स्मॉल आई भी रही पारिबो प्रोबेबिलिटी इज 3 बट रहइबो कि ओनली 1 सो 1 आउट ऑफ 3 मल्टीपल alleles इज प्रेजेंट हियर सेम केसेस एटी आसी 1 आउट ऑफ 3 पॉसिबिलिटी इज 3 बट रहइबो कट ओनली 1 ताले एटी हम देखि पारिबो केतेटा पॉसिबल जीनोटाइप्स हे पारे सो मने करो फर्स्ट जीनोटाइप इज आई ए एंड आई एटा गोटे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो पारिबो आई ए स्मॉल आई गोटे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो पारिबो आई बी गोटे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो पारिबो आई बी स्मॉल आई गोटे कॉम्बिनेशन हो पारिबो आई ए आई बी गोटे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो पारिबो तार केतना हो गला पले 1 2 3 4 5 आ गोटे कोटे मिल सलानी आई ए अच्छा आउ कौन रही पारिबो लास्ट वन दिस इज 6 possible combinations of the genotype but मु जदि गोटे इंडिविजुअल लेबी सो गोटे इंडिविजुअल ले ये 6टा पॉसिबिलिटी भीतर कोडा गोटे रहबो सपोज आई एम टेकिंग माय ओन एग्जांपल आई एम हैविंग माय ए ब्लड ग्रुप तो ए ब्लड ग्रुप कोडा कोडा ही पारिबो देखिबा हमें एटा देखो होमोजाइगस कंडीशन सो इट कौन हम आरबीसी सरफेस रे ए एंटीजन तैयारी हेबो दैट मीन्स सपोज दिस इज माय आरबीसी ओके तो इट कौन हम सरफेस एंटीजन ओनली वन टाइप ए एंटीजन तैयारी हेबो ताले ब्लड ग्रुप इट कौन हे जिवो ब्लड ग्रुप इज ए सेकंड केस रे हम नबा एटा डोमिनेंट अछि दिस इज रिसेसिव ताले इट कौन हे जिवो अगेन दिस इज माय आरबीसी सरफेस so एठी भी कौन हम ओनली ए एंटीजेन्स आर सिंथेसाइज्ड सो एठी भी केवल ए एंटीजन तैयारी हेबो एंड ब्लड ग्रुप बिकम्स ए नाउ थर्ड सिचुएशन रे कौन होची दुटा जाको बी एच आई बी हेले कौन हम आरबीसी रो जो सरफेस एंटीजन अछि सेठी कौन तैयारी हेबो बी एंटीजन these are my B antigen blood group becomes B. Then next case again heterozygote condition small I is recessive so it kon habo in this case also only one type of antigens are synthesized that is B antigen so our blood group भी B हे गला no issue ए केस रे कोन देखिबा IA अछि एंड IB अछि ये भी डोमिनेंट या भी डोमिनेंट and this phenomenon I told you it is codominance रे कोन हुए in the heterozygote condition जोटी दुईटा जाक allele similar नहंती different अछंती that condition is heterozygote and in heterozygote condition both alleles will express equally that is codominance so ये बाबू कोन करिवो ये जो फैक्टर टा अछि ये तर ए एंटीजन बनेइबो सेकंड जे अछि से बी एंटीजन बनेइबो तले एठी जो आरबीसी सरफेस टा आसीबो कोन हबो दुईटा जिनस आम पाइबा ए एंटीजन बी एंटीजन एंड ए एंटीजन सो ब्लड ग्रुप बिकम्स AB where both factors express themselves equally hence this combination is called as heterozygote combination the phenotypic expression is called as codominance okay last cases in the homozygous recessive cases सो ये कंडीशंस रे कोन हो जे देखिबा हमें एठी जो आरबीसी सरफेस अछि सो हियर बोथ कॉम्बिनेशंस आर होमोजाइगस रिसेसिव दे विल नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स
सो ये कौन जो ये जो आरबीसी सरफेस रहिबो तार सरफेस रे किछि भी एंटीजन रहिबे नाही ताले कौन हम दैट इज कॉल्ड एज योर जीरो एंटीजन्स आर एब्सेंट ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज ओ okay no antigens are present antigens are absent that is why this blood group is called as your O blood group okay so एठी हमें देखले कि कोन होची possible combinations are many but गोटे जीनोटाइप रे कोन only two alleles are present so number of genotypes केमते बाहर करबा गोटे शॉर्टकट अछि गोटे फार्मूला अछि number of genotypes बाहर करिया पई okay in case of multiple alleles यदि multiple alleles रे क्वेश्चन आसुथबो बा प्रॉब्लम्स आसुथबो इन द जेनेटिक्स ये चैप्टर उठके न्यूमेरिकल आसे ओके सो माने करो तुमको नंबर ऑफ alleles देछि 3 4 5 समथिंग लाइक दैट एंड आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स सो फार्मूला टी कोन आइ जेबो n into n plus 1 by 2 that is your total number of genotype सो ये हमें अप्लाई करी देखा मो पाखे एन टा कौन एन इक्वाल टू नंबर ऑफ alleles नंबर ऑफ मल्टीपल alleles सो ये केतरा alleles थला 3 सो जीनोटाइप केते हबो जीनोटाइप पॉसिबल जीनोटाइप इज हाउ मेनी दैट इज 3 into 3 plus 1 4 by 2 that is 6 नहीं 6 मीन्स ये आम नोट कर 1 2 3 4 5 and 6 बट फिनोटाइप के आसला देखा पड़ो ए बी एंड सो फिनोटाइप इज 4 सो फिनोटाइप कैलकुलेट करने गोटे फार्मूला अच्छे सो से फार्मूला कौन इन केस ऑफ मल्टीपल एलील जीनोटाइप तुम बाहर कर यूजिंग द फार्मूला n into n plus 1 by 2 फिनोटाइप बाहर करने गोटे टेक्निक अच्छे okay number of phenotype in case of the multiple allele that is n plus 1 n is the number of multiple alleles kete thila 3 plus 1 4 okay 4 phenotypes kon baharla a b and o okay so easy technique put the formula get the answer genotype ପାଇଁ formula अछि phenotypes ପାଇଁ ମଧ୍ୟ formula ଆମେ ready कर सालनी so I think एटा तम ପାଇଁ गोटे problem आउ create करि परिबनी जहाँ भी problems आसु regarding multiple alleles genotype calculate करिवार हो बा phenotypic calculation हो you can make it easily okay so students so I think you are enjoying our video classes okay then you must watch our video lectures. If you face any problems, please make the comments and share the video as much as possible. Thank you so much.